वैसे जो हमारा लेक्चर होगा आज सेशन, जिसमें मैं आज कुछ वैसे पढ़ाने नहीं वाला हूँ, तो इसमें आज आप लोग चाहो तो कुछ बोल सकते हो, आप लोग चाहो तो पढ़ा सकते हो कोई टॉपिक, कोई पढ़ाना अगर चाहता है तो पढ़ा सकता है। कौन है? कौन? आप पढ़ाओगे या कुछ बोलना चाहते हो? बोल सकते हो। कुछ पढ़ाना चाहते हो तो हाँ, ऑनलाइन हैप्पी वुमेंस डे सभी को। हाँ, कुछ बोलना है किसी को? पीछे लास्ट में आप तीनों कोशिश तो कर ही सकते हो, कुछ भी, किसी को कुछ लगता है। हाँ, आप। वैसे वुमेंस डे है तो वुमन बोलेंगी तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो लड़के भी यही चाहते हैं कि जिसका डे है वही बोले तो ज़्यादा सही है, आप क्यों बोले? तो इस वजह से हाँ, है कोई आ रहा है, कुछ बोलना चाहता है तो आ जाओ, किसी को कुछ बोलना है। ऑनलाइन आज नहीं है कोई? कोई नहीं, सिर्फ इतने ही लोग हैं। हाँ, आ जाओ। अरे वाह, आओ, अच्छी बात है। ये लो। ओके है सर। हाँ, अभी आप बोल सकते हो, लगा है ना वहाँ से? हेलो। ठीक है, रुको एक मिनट, ये इसको जेब में रखो बिंदास, ओके ऐसे ओके एकदम नॉर्मल। थोड़ा बोलोगे तो कोई। हाँ, सर ये ऊपर आ रहा है सर, हाथ में पकड़ो। खिचक ठेव ना. हाँ, म्हणजे डायरेक्टली टाक ना मध्ये. हाँ, ओके बस. ओके। ठीक है. हेलो हेलो। हाँ, और कोई वो लोग आ रहे हैं क्या? बुला लो. पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है? हेलो एवरीवन, आई एम नवघरे गजानन फ्रॉम पीजी मोजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाघोली पुणे, and currently I am studying in final year of computer engineering, and my role models are Dr. Babasaheb Ambedkar and Swami Vivekananda. So as we know, Dr. Babasaheb Ambedkar are the social reformer and the Swami Vivekananda are the philosopher who teaches us the responsibility, our actual responsibilities, then opportunities, our life clarity, then impact of our living impact on the world. So this was the small about philosophy. This is my small introduction. नहीं, ठीक है. आ रहे हैं और भी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो सब बैठ जाएंगे. और ऐसा कुछ नहीं है, देखो उसने कोशिश की, ये इम्पोर्टेंट है. अगर आप बोल भी नहीं पाए तो कोई दिक्कत नहीं है. आगे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े होना है, बोलना है, और इस तरीके से तो ये सब चीज़ें जनरल मैटर करती हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कहीं भी. तो इस वजह से ये अच्छी चीज़ है. हाँ, आ जाओ. तो सबको बोलना है, एक एक करके बैठो.
अच्छे बैठे तुम दोनों। ठीक है, बाकी के तो आ जाएंगे, आप शुरू करो। चलो, आप किस बारे में बोलना चाहते हो? Happy Women's Day. ठीक है, हाँ अभी आप बोल सकते हो। Hello, good evening, everyone. So, as we know, today we gather to celebrate the Happy International Women's Day. So, this is the honor to women to celebrate their day because of their resilience, their achievements, and their strength all over the world. So, second thing is the saluting scenario for the women for their inspiring challenges, their opportunities, and their dedication towards their goal to improve the overall the world. So, women are the backbone of the society that inspires the change. And once again, from entrepreneurship to business, from from entrepreneurship to business, from artist to architect, and from researcher to a governor. Simply a governance. So in every field of life, they are contributing and doing well. For example, Kalpana Chawla, she was a space researcher, and she is a great example of women empowerment and the dedication of women for the growth of the nation and the world. And second great example is Indira Gandhi. As you know, she was a female prime minister of the nation. So she dedicated her life for the growth of the India. So these are the both great examples of the women empowerment. So there are many other examples in the world to celebrate the women empowerment, to respect them. So as of now, women are facing the different challenges. For example, gender gap. Second one is privilege, non-privilege in the opportunities, and third one is leadership roles. So these are the challenges the women are facing in the world as of now, and this is our duty to celebrate them, to increase their voice, to encourage their voice. So the Women's Day is a reminder to celebrate them and support them, uplift them. So let's create a world where every woman can raise their voice, can celebrate their day. To all the women here present, to all these women present here, I want to tell you them: keep exploring, keep working, and keep inspiring. Happy Women's Day to all the women, and I am very thankful for the Professor Vikas sir and the management for giving me the simple little opportunity to speak here. Thank you. ठीक है, और हाँ, पहली चीज़ तो ये है कि कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छे से जो बताया उसने वो भी बहुत अच्छा उसने बताया कि वुमेंस डे के बारे में, कि किस तरीके का योगदान रहा है स्त्रियों का समाज में, किस तरीके से कौन भारत में, जैसे इंदिरा गांधी जी के बारे में बताया और भी उसने बताया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई। हाँ आ जाओ, और कोई बोल सकता है चाहे तो, किसी को कुछ भी बोलना है जनरल वो आ सकता है, बोल सकता है। पीछे कोई आके बोलना चाहता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग कम पड़ गए। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई बोले। सही है, आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ भी जनरल आप बोल सकते हो। पीछे हाँ, आप दोनों में से कोई भी कुछ भी किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो, कि जिस तरीके से महिलाओं का जो योगदान रहा है हमारे समाज में,
जो उन्होंने जो भी चीज़ें की हैं और अभी तक जिस तरीके से चल रहा है। पहले ये कहा जाता था, हाँ हाँ आ जाओ। पहले ये कहा जाता था कि अब पुरुष के पीछे अब स्त्रियां भी चल रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जाएगा, अब ऐसा कहा जाएगा कि साथ चल रही हैं। पहले पीछे की बात की जाती थी। मैंने एक बार ना एक कहानी बताई थी कि याद है शायद मेरे पाइथन के बैच में एक बार मैंने बताई थी। जो गौतम बुद्ध थे, उनकी जो पत्नी थी, उनकी कहानी मैंने बताई थी एक बार पाइथन की बैच में। थोड़ा सा अभी बता देता हूँ एक बार और, कि ऐसा समय था उस समय कि गौतम बुद्ध एक राजघराने से थे और उनके पिताजी काफ़ी बड़े राजा थे उस जगह के। मुझे भी कुछ थोड़ा सा पहले की तरह याद नहीं है, फिर भी बताता हूँ। हाँ आ जाओ। तो हुआ ये कि उनकी जो ज़िंदगी बीती, अब बहुत ही शान और शौकत सारी चीज़ें मिलती हैं एक राजा के बेटे को, तो सारी चीज़ें उन्हें भी मिली। लेकिन एक बार वो घर से जब बाहर निकले, जब उनकी उम्र 20 से ज़्यादा हुई लगभग, तब वो जब बाहर निकले तब उन्हें ये पता चला कि समाज में कितना दुख है। ये उन्हें बाद में पता चला जब उन्होंने देखा कि रास्ते में कोई भिखारी पड़ा हुआ है जिसे खाने को नहीं मिल रहा है, कोई बीमार है, कोई मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को देख के उनको बहुत तकलीफ़ हुई। और तकलीफ़ होने के बाद उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे निकल जाना चाहिए ज्ञान की खोज में। हर व्यक्ति के अंदर एक मतलब स्किल जैसे होती है ना, वैसे कि उसका स्वधर्म कुछ और है, कर्म कुछ और रहा है, ऐसे होता है। किसी को पसंद कुछ और था लेकिन कर कुछ और रहा है। जैसे मुझे अगर टीचिंग पहले से पसंद थी, लेकिन अगर मैं ये नहीं करता तो कुछ और करता तो उसमें उतना खुश नहीं रह पाता जितना अभी खुश हूँ। एक अच्छा गायक अगर कभी गायक नहीं बन पाता, कुछ और करता, तो वो खुश नहीं होता। तो सबका एक स्वधर्म होता है, स्किल होती है सबके पास कुछ ना कुछ, और वो हमेशा सोचता है कि मैं ज़िंदगी में ये करूं, भले उसे मिलती है या नहीं मिलती है वो अलग बात है। तो उन्हें ऐसा लगा और वो उनकी शादी हुई होती है उसी समय, और उनका बच्चा जो होता है वो 1 साल का होता है, राहुल। और उसके बाद वो क्या करते हैं, जब इतना सब कुछ देखते हैं, और एक चीज़ और है कि जब उनकी शादी होती है तो उस समय भी सबसे खूबसूरत महिला से शादी की जाती है उनकी, और उनकी भी परीक्षा ली जाती है उस समय। और बाद में ये होता है कि वो सब छोड़ के चले जाते हैं रातों रात बिना बताए, अपने घर में अपने पत्नी से भी नहीं बताते। 1 साल का छोटा बच्चा है, किसी को कुछ पता नहीं, और वो रात में बिन बताए घर छोड़कर चले जाते हैं और ज्ञान की खोज में। लेकिन उसके बाद उनकी जो पत्नी है बहुत दुखी होती हैं जब उन्हें पता चलता अगले दिन कि ये चले गए हैं, नहीं पता चला कहाँ गए। तो वो अपनी सहेलियों से बात करते समय अपना दुख बता रही है कि वो चले गए, मुझे वो उनके जाने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि बिना बताए गए, मुझे दुख इस बात का है। तो इस वजह से बहुत दुखी हैं वो, और वो चले गए जहाँ। और उसके बाद उन्हें वहाँ जाने के बाद बोध गया में, मतलब जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद उनका जो मतलब रहन सहन था कि एक भिक्षा लेना, अपना जो जीवन एक साधु जैसे जीता है उस तरीके से वो जीते हैं, उनकी जो रोज की दिनचर्या थी। लेकिन उनका प्रताप ऐसा था कि अगर कोई उनके पास चला जाए तो वो उनका हो जाए, इस तरीके का उनका प्रताप था। अब उनके पिताजी ये बोलते हैं कुछ उनके दोस्तों को कि जाओ उन्हें कह देना, पिताजी याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो जब वो गए वहाँ पे तो वो भी उनके हो गए, लौटे ही नहीं। और धीरे धीरे बहुत समय बीता, बहुत समय के बाद, कुछ सालों के बाद, फिर वो उनके एक बचपन के दोस्त को कहते हैं कि जाना और कह देना पिताजी याद कर रहे थे, लेकिन एक बात और याद रखो, मुझे पता है तुम भी वापस नहीं लौटोगे, लेकिन
इतनी बात जरूर बता देना कि पिताजी याद कर रहे थे, भले उसके बाद तुम लौटो या ना लौटो। तो वो उनका दोस्त जो है वो जाता है, और जब उनसे मिलता है तो वो भी उनका हो जाता है। मतलब किस तरीके का उनका प्रताप रहा होगा कि वो भी उनका हो जाता है। और बाद में लेकिन वो बता देता है कि आपको पिताजी याद कर रहे थे। तो सोचते हैं चलो अब घर से बुलावा आया है तो अब जाना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से निकलते हैं जिस जगह पे गए होते हैं, अपने घर अपने नगर में पहुँचते हैं। और इतने बड़े राजा थे उनके पिताजी। वहाँ पहुँचने के बाद भी वो धर्मशाला में रुकते हैं, और समाज में गांव में जो भी लोग हैं वो ये चर्चा भी करते हैं कि राजा का बेटा यहाँ रुका है, राजा का बेटा यहाँ रुका है, ऐसी बातें भी होती हैं। और उसके बाद वो अपना डेली वाला जो उनका काम था कि भिक्षा लेना और उस तरीके से अपना जीवन जीना, वो वही करते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। फिर ये खबर राजा तक जाती है कि वो आए हैं लेकिन वो भिक्षा मांग रहे हैं और ऐसे ऐसे अपनी मतलब ऐसा कर रहे हैं। तो फिर उनके पिताजी आते हैं, उनसे बात करते हैं तो बताते हैं कि अब मैं आपका बेटा नहीं हूँ, अब मैं समाज में ये काम कर रहा हूँ और मैं यही करना चाहता हूँ, मैं इसमें खुश हूँ, समाज के लोगों की तरह मैं भी जीवन जीना चाहता हूँ। तो वो उस तरीके से करते हैं। उसके बाद वो एक बार पूछते हैं कि मेरी पत्नी का नाम लेके कि वो कहाँ है। तो उनके पिताजी बोलते हैं वो नाराज़ है और वो नहीं आई, मतलब आई नहीं मिलने के लिए, क्योंकि वो इतनी दुखी है। लगभग 6 साल हो चुके हैं कि पहले के समय पे फ़ोन वगैरह थोड़ी हुआ करता था कि सोचो कोई बिना बताए चला जाए, कहाँ से फिर से मुलाकात होगी। आज का समय ऐसा है, कहीं से किसको भी ढूंढ लिया जाता है। अब का समय अलग है, तब का समय अलग था। तो वो नाराज़ है, लेकिन उनकी इच्छा इतनी ज़्यादा है मिलने की, लेकिन उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि बता के क्यों नहीं गए, इस बात से नाराज़ हैं। आज 6 साल हो गए। उसके बाद ये सोचते हैं ठीक है वो नहीं आई तो मैं जाता हूँ। अब आप सोच के देखो कि ये 6 साल बाद पहली बार उस घर में जाते हैं, सामने खड़े होते हैं। 5 से 6 साल का बच्चा जो राहुल है वो सामने बैठा हुआ है, उनकी पत्नी सामने है और ये खड़े हैं। सोच के देखो वो माहौल क्या रहा होगा उस समय। और उसके बाद जब वो पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वो पता है क्या बोलते हैं कि मुझे भिक्षा दो। वहाँ पहुँच के उनका जो काम होता है उसी तरीके से वो जीते थे। तो वो महिला क्या करती, जो उनकी पत्नी होती है, अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और उनके हाथ में दे देती है, जाओ इसे ले जाओ अपने साथ। मतलब आप सोच के देखो कि एक स्त्री कितनी महान रही होगी कि जिसने अपने बच्चे का हाथ अपने पति के हाथ में दे दिया कि ले जाओ, यही भिक्षा है, यही मैंने दान दिया है। तो वो स्त्री कितनी महान रही होगी। मतलब एक वुमेंस डे था, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई कि किस तरीके के लोग रहे हैं समाज में, किस तरीके की महिलाएं रही हैं जिन्होंने किस तरीके का जीवन जिया है। और भी बहुत सारी प्रथाएं चलती थी हमारे समाज में, सती की प्रथा थी और भी कई थी। मतलब कितना कष्ट झेला है आप जानते होंगे। एक महिला जो है वो जितना सह सकती है उतना कोई भी सह नहीं सकता। अगर मैं बात करूं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसे संभालना है 6 महीने का, 7 महीने का या 1 साल का। एक साइड किसी आदमी के पास दे के देखो और किसी महिला के पास। आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट प्यार आएगा, उसके बाद गुस्सा ही आएगा। बच्चे ने मूंछ खींच दी या कुछ कर दिया, कुछ भी हो गया, तो तुरंत गुस्सा आता है और वो हाथ उठा सकते हैं, और इससे ज़्यादा समय तक कोई ले ही नहीं सकता। इसीलिए अगर आप देखोगे स्कूल्स में अगर बच्चों को कोई संभालता है तो महिला, सहनशीलता बहुत ज़्यादा है, सहने की ताकत, ये जो क्षमता है ये सिर्फ महिलाओं के पास है। मतलब एक चीज़ और है कि ये जो रिश्ता बना हुआ है महिला वाला, माँ वाला, ये एक ही रिश्ता था समाज में। ये कुछ साल से ये चला आया कि उसमें एक पिताजी भी ऐड हो गए, पहले ऐसा नहीं था। ये अगर आप पुरानी किताबें पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा, सिर्फ महिला ही थी। ये तो बाद में धीरे धीरे इस तरीके से बना है।
तो उनका योगदान बहुत रहा, और वो उस तरीके की होती हैं जो सब कुछ संभालती हैं, घर को भी संभालना है, परिवार को संभालना है, बच्चे को संभालना है, और भी सब कुछ करना है। उसके बाद एक बेटी है कि उसके जैसा दुख कोई नहीं देखता, मुझे ऐसा लगता है कि उसका जन्म हुआ, जन्म से लेके 20-25 साल की एक उम्र होती है जब तक वो अपने माँ बाप के साथ होती है, ये एक समय होता है। उसके बाद उसको जाना है, ये बात तो तय है। तो माँ बाप को छोड़ने का जो दुख है, उससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है दुनिया में, अगर कोई समझ पाए तो। एक बेटा ये चीज़ समझ सकता है और एक बेटी समझ सकती है कि कितना बड़ा दुख होगा, और ये हर स्त्री को झेलना पड़ता है। तो इससे बड़ा दुख है क्या ज़िंदगी में। ऊपर से वो जिस घर में जाएगी, वहाँ पे पता नहीं जिस तरीके से माँ बाप ने रखा था उस तरीके से ही रखेंगे, या फिर बोलेंगे 4 बजे उठ के तुम्हें चाय बनानी है। हमारे यहाँ 4 बजे ही सब चाय पीते हैं, मतलब आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं पिए होंगे, लेकिन शादी के बाद से पीना चालू होगा। सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, ये करना है, वो करना है, ऐसे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो सहने की शक्ति है वो ज़्यादा है। मतलब अभी की तो धीरे धीरे समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है। जैसे जैसे मतलब शिक्षा ले रहे हैं लोग, तो उस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे लड़की को बाहर घर से भेजना ही नहीं है, बहुत अभी गांव में आप देखोगे स्कूल नहीं जाने देते। 8th 9th हो गया, बस घर बैठो, या मैक्सिमम 10th, अब नहीं पढ़ना आपको। पढ़ के क्या करोगी, शादी तो होने वाली है आपकी, घर पे जाके उनके यहाँ खाना ही तो बनाना है, क्यों पढ़ोगी। ऐसी विचारधारा समाज में है, अभी भी बहुत है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी, तो धीरे धीरे बदलाव आएंगे समाज में, और बैलेंस बनेगा समाज। अगर आप दूसरे देशों को देखो तो बैलेंस बना हुआ है, और डेवलपमेंट इसी वजह से है, इसी वजह से। और हम इसीलिए पीछे हैं। अगर डेवलपमेंट में जो कमी है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, एजुकेशन जो पूरी तरीके से नहीं पहुंचता, महिलाओं को नहीं पहुंचता, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही मुझे बताना था। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकता है, बोल सकता है। हाँ, कोई है बोलना चाहता है कुछ, आओ आ जाओ। ऑनलाइन कोई भी नहीं है तो क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। हाँ, या फिर मैं बुलाना शुरू करूं। और कोई कुछ बोलना चाहता है। एक लड़के ने कोशिश की है, कुछ भी अगर आपको लगता है, या किसी और चीज के बारे में भी आप बोल सकते हो चाहो तो। कौस्तुभ वाघ का कहना है कि मुझे मौका मिलता तो मैं बोलता। क्या हुआ। हाँ, हैंड रेज से आवाज तो आएगी, लेकिन बहुत लेट आएगी, पता नहीं। हाँ, ये लो। इसको रखो। पहली बार से नहीं नहीं चलेगा, कोशिश तो कर रहे हो आप। हाँ, ये कान पे लगा लो। लगा हुआ है क्या लगा नहीं। इसमें फंसा लो कान में। हाँ, अब बोल सकते हैं। सर यहाँ पर यहाँ खड़ा हो सकता हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ। हाँ बोलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जियान तांबोली है और मैं मॉडर्न कॉलेज में हूँ, TY BSc कंप्यूटर साइंस में। तो आज वुमेंस डे है, सभी वुमेंस को हैप्पी वुमेंस डे। तो एक्चुअली यहाँ तक मैं जो पहुँचा हूँ वो अपनी माँ बाप की वजह से पहुँचा हूँ,
तो खैर अभी पापा की बात नहीं करूँगा, वुमेंस डे है इसलिए अपनी मम्मी की बात करूँगा। तो मेरे मम्मी ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। जब भी मैं छोटा था तभी कोई क्लास वगैरह नहीं थे मेरे पास, मैं क्लास को नहीं जाता था, तो तभी मुझे मेरे मम्मी ने पढ़ाया। उनके वजह से मैं ABCD पढ़ पाया और उनके वजह से मैं स्कूल में हमेशा नंबर 1 आता था, जब तक मम्मी ने पढ़ाया उसके बाद नहीं आया। तो सबसे पहले इसका मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपने मम्मी को कि उनके वजह से मैं इतना पढ़ पाया, आगे जा पाया। और आजकल की वुमेंस जो है इतने ग्रो कर रही हैं, खासकर कि स्पोर्ट्स में। जैसे हम देखते हैं इंडियन टीम, जो हमारी वुमेंस इंडियन टीम है, उसमें स्मृति मानना हो जाए, फिर हरमनप्रीत कौर हो जाए, मिताली राज हो जाए, इन लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है अपनी टीम के लिए, इंडियन टीम को इतना ऊंचाई तक पहुंचाया। उसके बाद अभी जब भी मैं कॉलेज में, स्कूल में, लड़कियां इतनी होशियार हो चुकी है कि उन्होंने इतनी ग्रोथ की है। अगर कंपनी में जाती हैं तो सबसे हाई पैकेज लड़कियों का ही होता है और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि वो जिससे शादी करेंगी उसका पैकेज उससे ज़्यादा हो। तो ये पॉसिबल कैसे है मुझे पता नहीं, क्योंकि कहीं भी जाओ, कोई भी कॉलेज में, कोई भी स्कूल में, सबसे ज़्यादा होशियार तो लड़कियां ही होते हैं। और जैसे सर ने बात की कि लड़कियों के पास सहन करने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी मम्मी के साथ ये ऑब्ज़र्व किया है कि उनके पास सहन शक्ति बहुत है। कि सर ने बताया कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर में जाती है, वहाँ के रहन सहन को वो अपनाना पड़ता है उनको, ये कोई आसान बात नहीं होती। तो इसके लिए वुमेंस की सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, सर ने सही कहा। बस इतना ही कहना चाहूँगा और सभी को हैप्पी वुमेंस डे। अच्छी बात है, कोशिश भी की उसने और अच्छा भी बोला। और कोई चाहे तो बोल सकता है अभी। हाँ, कौन? आप बोली। हाँ, और कोई पीछे हो गया है, वो देना है, कुछ लाया है वो उन्होंने, तो देखते हैं अभी क्या है। हाँ, मैं एक पढ़ के बता देता हूँ। कौस्तुभ ने कुछ लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। उसने एक मैसेज है वो भेजा है, तो उसे पढ़ लेते हैं एक बार। Good evening everyone. Today we are gathered here to celebrate International Women's Day, a day to recognize and appreciate the achievement of women around the world. Women play an important role in every part of life, whether at home, in workplaces, in science, sports, or leadership. They contribute to society in countless ways and inspire us with their strength and dedication and wisdom. However, even today, many women still face challenges like inequality and discrimination. It is our responsibility to support and encourage gender equality, respect women, and give them the opportunities they deserve. उसके बाद आगे है, let's celebrate the achievements of women and work together to create a world where every woman is respected, empowered and valued. Happy International Women's Day. Thank you. तो ठीक है, अच्छा लिखा आपने, और आपने खुद लिखा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो क्या हुआ? अच्छा लिखा है, तो यही तो बोल रहा हूँ, खुद लिखा होगा तो अच्छी बात है। तो कोई बोल रहा है चैट जीपीटी है, और कोई डीप सीक कोई बोल रहा है। हो सकता है खुद से लिखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता? ऐसा आप क्यों नहीं मानते कि ऐसा नहीं ही होगा? ऐसी कौन सी वजह है कि जिस वजह से आप ऐसा सोच रहे हो ऐसा होगा ही नहीं? वर्ड्स की वजह से हो सकता है कि हाँ, ऐसे वर्ड्स जो हैं जिस तरीके से यूज हुए हैं, फिर भी ठीक है ना।
नहीं हो गया है क्या, पूछ लेता हूँ। हाँ हो गया है तो हो गया। अच्छा ये लगाना है क्या उधर, और बुलाऊं किसी को? हाँ किसको? शुभम? शुभम कौन है शुभम? बोला आप लोग भी चाहिए तो वो उधर देख लो वो लोग क्या कर रही हैं। तो ऑनलाइन वालों को भी दिखेगा जो अभी रखा है हमने, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ। चल रही है पढ़ाई? दिया इंटरव्यू? कौन सा? अच्छा किस टेक्नोलॉजी पे? दोनों दिए? पाइथन? कितना दिन हुआ? अच्छा गया इंटरव्यू? पाइथन के क्या क्वेश्चंस पूछे थे? जो पढ़ाया था वही ना? कौन सा प्रोग्राम? बस फिर तो इजी था सब। आप लोगों को कुछ बोलना है? नहीं आप तो बोल सकती हो। नहीं ठीक है। देख लो एक दो लोग देख लो क्या है। अनुराग का कहना है आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आए थे, मुझे पता होता तो मिलने आता, मैं एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर हूँ। 2 किलोमीटर दूरी कोई होटल था, मैं वहाँ रुका था। कैब वाले ने 850 लिए 2 किलोमीटर के। आपके यहाँ बड़ा महंगा है। हाँ हाँ लगा दो। हाँ इंटरव्यू क्वेश्चंस वैष्णवी मिल जाएगा, मैं बोलूँगा डालने के लिए सारे क्वेश्चंस, जावा के, पाइथन के, हर लैंग्वेज के। हाँ सूरज होने वाला है, हर वीकेंड मॉक शुरू करेंगे अगले हफ्ते से।
और ठीक है ना? वो टेप नहीं है क्या? वो निकल जाएगा ना? हाँ, इससे चिपकेगा क्या? हाँ, और ये वाला टेप? अच्छा, तो ये लेकिन ये चिपकेगा क्या? ठीक है। हाँ, तो फिर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और कुछ बोलना ऑनलाइन वालों को तो आप लोग मैसेज करो, मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट्स। इधर एक और लगा लो चाहिए तो। हो गया है। हाँ, इधर ही करने का। हाँ, अभी मैंने लिया सेशन थोड़ा सा, अभी फिर हाँ चलेगा ना, डिस्प्ले पे कुछ दिखा सकते हैं। ऊपर लगाना सर? हाँ, ऊपर भी लगा सकते हो। चैतन्य का मैसेज है, सर कल का फाइनल मैच इंडिया जीतेगी तो आप एफसी रोड पे सेलिब्रेट करने जा रहे हो क्या? पहली बात तो मैं रहता ही वहीं पे हूँ, इसलिए मैं बाहर निकलता हूँ तो बाहर वैशाली होटल ही है मेरे ही फ्लैट के बाहर, अगर निकलूँगा तो इसलिए मैं आ जाऊँगा, मैं वहीं पे रहूँगा। लेकिन कल तो मैं नहीं रहने वाला हूँ, कल नासिक जाना है मुझे, कल परसों आऊँगा रिटर्न, तो इस वजह से तो कल नहीं हूँ। हाँ, लगा सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्या? लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं चलेगा, प्ले होके बंद हो जाएगा, क्योंकि मीडिया रहता है ना वो। हाँ, फोटो लगा सकते हैं। क्या? लास्ट वाले कमेंट पढ़ो तो। करके फैमिली जीरो टू हीरो बैच के लिए ही फैमिली का सपोर्ट मिला है, ऐसा।
ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं अभी लाइव हूँ और आप सभी को सब लोग देख रहे हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। हैप्पी वुमेंस डे। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से डेकोरेशन हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं। सारे हाँ क्या फ्रंट वाला कैमरा स्टार्ट। हाँ हाँ वो वाला चालू है ना। आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पे कुछ बोल सकते हो, किसी को कुछ बोलना है तो। कुछ बोलना है। अच्छा आप उधर देख रहे हो। हैप्पी वुमेंस डे आपको। अच्छा कुछ बोलना है आप लोगों को। कुछ आप लोगों को। हाँ ठीक है। आपको कुछ बोलना है, आपको सब लोग सुन रहे हैं। आप लोगों को, आप दोनों को, इधर आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। आपको आपको कुछ बोलना है। क्या यहाँ पे भी है। आपको कुछ बोलना है आप लोगों को। इंस्टाग्राम पे लाइव है हम। कुछ बोलना है क्या आपको। जो आज सर ने मैनेजमेंट किया है वुमेंस के लिए स्पेशल, वो देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब सब जैसे सब मतलब सर के घर के वुमेंस है सब वैसे सही है। सर क्लास में जितने भी लड़कियां हैं उनको भी वैसे ही तरह ट्रीट करते हैं और वुमेंस के नहीं लड़कों के भी वैसे ही ट्रीट करते हैं सर। इसलिए थैंक यू सर। आप कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। आप और कोई आपको। तो ये ऑफिस, हाँ बहुत दिन से बोल रहे थे सब लोग कि आपका ऑफिस नहीं देखा है तो ये देख सकते हो।
ओके ठीक है, हेलो इसको रखिए। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोहम है। तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बस एक ऑब्जर्वेशन है मेरा कि हमारे क्लास में रेशियो लड़कियों का कम है। तो इसके दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं कि शायद लड़कियों को पहले से ही ज़्यादा कोडिंग आती हो, तो तो मुझे लगता है कि लड़कों को इसके बारे में सोचना चाहिए, या फिर लड़कियों को अपने ही दोस्तों को इनकरेज करना चाहिए कि मिलकर अच्छी चीज़ें सीखे। इससे सर का भी टर्नओवर बढ़ेगा और क्लास में लड़कियां भी ज़्यादा होंगी। बाकी बाकी ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ सर से एक क्वेश्चन है कि आपके लाइफ में सर का एक्सेंट पकड़ लिया गलती से, कि आपके लाइफ में कोई वुमेन का क्रूशियल रोल होगा तो शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगा था शायद आप अपने बारे में कुछ बताओगे। मैंने यही उम्मीद की थी कि शायद आप अपने बारे में कुछ बताओगे या और कुछ बोलोगे। तो देखो, जैसे पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ, ये बताता हूँ कि हर साधु का अतीत होता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि देखो, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। जैसे हर बच्चा कॉलेज में रहता है वैसे मैं भी रहा हूँ। जो चीज़ें आपने जो सपने देखे वही मैंने भी देखे, जो चीज़ें आपके साथ हुई वही मेरे भी साथ हुई। तो ये सारी चीज़ें एक तरह की होती हैं सबके साथ। लेकिन एक समय आता है कि जब मैच्योरिटी आती है, उसके बाद आपको ये समझना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है तब तक आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे रह सकते हो। तो एक समय के बाद मुझे ये चीज़ें समझ आई कि कहाँ तक रहना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक बढ़ना है, कब रुकना है। ये सारी चीज़ें मैंने भी समय के बाद समझा। तो इस वजह से जनरली अभी तो आपने बोला है इसलिए ऐसे बोलता हूँ कि मैसेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें कॉमन है। मैं बहुत सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ, अगर किसी ने मुझे भेजे हैं, वो कुछ पर्सनल मैसेज भी भेजता है तो वो भी पढ़ता हूँ या भेजती है, वो सब मुझे पता होता है। कोई कोई अलग से अकाउंट बनाता है, नया अकाउंट, ताकि सर मुझे पहचान ना ले। नए अकाउंट से मैसेज आते हैं कि मैं अपने ओरिजिनल अकाउंट से मैसेज नहीं कर सकती या जो भी है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है और पढ़ा है मैंने, और मैनेज कैसे करना ये भी मुझे पता है। तो इन बातों का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। दूसरी चीज़ आपने जो बोला, तो वैसे तो ऐसा किसी का रोल नहीं रहा है, मतलब पेरेंट्स के अलावा, कि जो मेरे साथ कुछ ज़िंदगी में हुआ है जो भी है, तो पेरेंट्स का रोल मैं मानता हूँ मेन, कि पिताजी और जो मेरी माता जी हैं, जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था मैं टीचर बनूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, या कभी उनके दिमाग में नहीं था। सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि मुझे आज तक कभी बोला ही नहीं घर वालों ने पढ़ो। सबसे अच्छी चीज़ मैंने ये अपने ज़िंदगी में देखी, कभी नहीं बोला। मतलब जब मैं 5th में था या 10th में था, कभी नहीं कि तुमको पढ़ाई करनी है, चलो पढ़ने बैठो किताब लेके। लगभग हर पेरेंट्स बोलते हैं, कभी नहीं बोला उन्होंने, पढ़ना है तो पढ़ो। मैं सच बता रहा हूँ, 10th के बाद ग्रेजुएशन जब मेरा पूरा हो गया तो एक दिन खाली मेरे मम्मी ने पूछा आपके कॉलेज का नाम क्या है। 5 साल के बाद, मतलब वो भी नाम नहीं याद हुआ होगा, और घर के पास में ही, मतलब सारी चीज़ें, ऐसा भी नहीं कि मैं बाहर कहीं गया हूँ रहने के लिए फिर वहाँ किसी कॉलेज में हूँ तो नहीं पता होता, पेरेंट्स को नहीं पता था। कभी किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। घर से फीस मिली, कभी क्लास लगवाया ही नहीं लेकिन फीस ली, ये भी बता रहा हूँ। तो उसके बाद, क्योंकि होता ये है कि हर बच्चे का जो खर्चा होता है पेरेंट्स को समझ नहीं आता कितना है। वो सोचते हैं शायद 100 रुपये होगा रोज का, लेकिन होता है 400 रुपये रोज का। अब वो कैसे होता है पता नहीं, आप लोगों को पता होगा सब खर्चा कैसे होता है, कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी को लेकर जाना है या जो भी है, तो इस तरीके के खर्चे होते हैं, पेरेंट्स नहीं समझ पाते। और
फिर बोलना पड़ता था एग्ज़ाम आ गई है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, 2,000 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस है, भले 400 रहे 500 रहे। तो ये सारी चीज़ें सब करते हैं, मैंने भी की है, लेकिन अब बता दिया मैंने। अभी कुछ समय पहले ही मैंने बताया घर पे, मतलब हो गए थोड़ा समय बीत गया, कि मैंने जितनी भी फीस आप लोगों से ली थी आज तक कभी भरी नहीं क्लास में। बता दिया, कभी गया ही नहीं क्लास में, तो कभी समझा ही नहीं। पहली चीज तो किसी क्लास में गया तो कोई टीचर मुझे रोक ही नहीं पाया, उसके अंदर वो क्षमता शायद नहीं रही हो मुझे रोकने की, तो नहीं रोक पाया, और मैं वापस कभी गया भी नहीं। तो ये चीज मेरे साथ हुई है, और इस वजह से ये सारी चीजें मैंने की है। हर एक चीज, मस्ती हो या कुछ भी हो लाइफ में जो जीना है, दोस्तों के साथ पार्टी या फिर रूम पे जाना और दोस्तों के बीच में बैठना, ये सारी चीज़ें कॉमन है, हर बच्चा करता है अपने समय पे। हाँ, लेकिन एक सही समय आपको पता होना चाहिए कब रुकना है, क्योंकि अगर आप नहीं रुके फिर कभी नहीं रुकोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप बहुत समय तक टिक नहीं पाओगे, समय के साथ चल नहीं पाओगे, पीछे हो जाओगे। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, आप कैसी भी अपनी ज़िंदगी जियो, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। रात को 3 बजे सोने के बाद भी अगर आप 6 बजे उठ के अपने काम पे जा रहे हो तो ये डिसिप्लिन है। किसी दिन लेट हो गया फिर भी आप अपने टाइम पे उठे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ध्यान रखो कि ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जो आपने बोला मुझे, तो उसका ऐसा कोई ख़ास जवाब नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में हर फेस आदमी देखता है, दुख देखता है, सुख देखता है, तो सारी चीज़ें मैंने भी देखी होंगी, ऐसा आप उम्मीद करते हो शायद। तो तो ऐसा होता है, तो मैंने भी अपने समय पे देखा है सब कुछ। मतलब कॉलेज के टाइम पे तो सभी करते हैं, तो ठीक है, उस समय की बात है। कॉलेज में हो सकता है कि आपको कोई लड़की पसंद हो, जनरली यही होता है कि जो पसंद होती है वो भी उसी क्लास में होती है, तो हम बहाना करते हैं 2 पेन है क्या, भले 1 पेन बैग में रहे तो भी हम बोलते हैं 2 है, कहीं से तो शुरू करना है बात करना। हाँ, बात हुई, अच्छा कल सर ने जो पढ़ाया था उसके नोट्स मिल जाते तो अच्छा होता, तो शायद मैं नोटबुक अगर आपकी मिल गई तो मैं कल दे दूंगा पूरा लिख के। तो फिर अगले दिन आप नोटबुक लेके जाओगे, लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन आपको बहाना चाहिए था जो मिला। यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे पहले ऐसा फीचर था कि जिसमें अगर आप रात को 2 बजे भी ऑनलाइन हो तो दिखता था, अभी तो ऑफ भी कर सकते हो। तो उस समय ये होता था कि कोई मुझे देख ना ले 2 बजे मैं ऑनलाइन हूँ, इसलिए मैं लाइन नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करता था, और भी कई एप्लीकेशन थे, तो दूसरे एप्लीकेशन यूज करने पड़ते थे, मतलब जनरल। तो ये चीज़ें भी होती हैं, और ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं, अभी भी होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, आप कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई करो, अपना एक जो ये वाला पार्ट है पढ़ाई वाला, उसको मेंटेन रखो। आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ना बहुत मस्ती करते हैं, कॉलेज भी कभी नहीं जाते, फिर भी ऑल क्लियर होते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं, ये मैंने देखा है। और मुझे ज्यादातर पसंद है उन बच्चों को पढ़ाना जो बैकलॉग वाले हैं, मतलब मैं अपने आप को बैकलॉग स्पेशलिस्ट बनाना चाहता हूं, कि जो बच्चे बैकलॉग हैं मैं उन्हें ही पढ़ाऊं, ताकि कम से कम वो अच्छे मार्क्स लाए, आगे जाए। जो सबसे कमजोर है, अच्छों को तो कोई खराब टीचर भी पढ़ा दे तो भी वो सीख लेगा, टीचर को पढ़ाना आता है नहीं आता। अच्छा, कॉलेज में जाते हैं जो कुछ बच्चे होते हैं एकदम आगे बैठते हैं और वो लोग बहुत सीरियस होते हैं पढ़ाई को, टीचर पढ़ाए समझे ना समझे फिर भी वो लोग कर लेते हैं, उनको उससे मैटर ही नहीं करता पढ़ा कौन रहा है। लेकिन जो बाकी का क्राउड है 80% मेन वो है, वो लोग नहीं सीख पाते, वही लोग पीछे रहते हैं, जॉब सिर्फ 20% जो आगे के होते हैं उन्हें ही मिलती है, वो 80% वाले क्राउड का क्या।
और सच बोलूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई भी है, नहीं भी बताई है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें पर्दे के अंदर ही ठीक हैं, तो यही वो वही रहने देते हैं। क्योंकि मुझे एक चीज़ मैं बताता हूँ ना, मुझे स्टूडेंट्स के सामने बड़ी शर्म आती है किसी भी चीज़ के बारे में बात। मैंने आज तक जितने 7 साल हो गए पढ़ा रहा हूँ, कभी भी आज तक मैंने गलत वर्ड यूज़ नहीं किया। भले मैं ज़िंदगी में सुनता हूँ, दोस्त हैं, मैंने किए भी होंगे, लेकिन कभी पढ़ाते समय कभी नहीं, कभी किसी को मैंने गलत शब्द यूज़ नहीं किया। मतलब जैसे मूर्ख एक शब्द है, वो तक मैंने किसी को कभी बोला नहीं है। मुझे ये बताना है, मुझे पसंद ही नहीं है। एक भाषा होती है टीचर की, उसे मेंटेन रखना है। गरिमा होती है एक शिक्षक की, उसे मेंटेन रखना है, वो मैं रखता हूँ। कहीं बाहर भी जाता हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों के साथ हूँ, अगर मुझे किसी ने देखा तो क्या होगा, ऐसा लगता है मुझे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर्सनल लाइफ आपकी कैसी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे झिझक होती है उस चीज़ से, कहीं भी जाता हूँ किसके भी साथ। तो ये एक चीज़ होती है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि कैसे ये करूँ, जाने दो। लेकिन ठीक है, कोई अपनी बात रख सकता है, मुझसे कुछ भी बोल सकता है, जो चाहे शेयर कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पर्सनल परेशानी है, आप वो भी बता सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और उसने मुझे धोखा दिया, कुछ भी आप मुझे बता सकते हो। तो अनुभव है उस चीज़ का, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। तो ठीक है, हाँ, आप कुछ कहना चाहती हो, लो आ जाओ यहाँ पे, ये लो, उसके बाद आप आना, ये इसको लगा लो, हाँ बराबर, हाँ इसको कान में, हाँ बराबर, इसको हाथ में ही रहने दो। हाँ, ये हाथ में लेके बोल सकती क्या मैं? हाँ हाथ में भी ले सकती है, नहीं निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लो। सॉरी। हाँ डायरेक्ट आप चाहो तो हाँ बोल ऐसे भी बोल सकती हो। हाँ। So good evening, men's and okay, thank you. So good evening, men's and women's. So आज हम वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर एक्चुअली मुझे ये वुमेंस डे वाली कंसेप्ट, हाँ थोड़ा ऊपर रखो। ओके, हाँ आ रहा है आवाज़? हाँ आएगा। हाँ, सो गुड इवनिंग मेंस एंड वुमेंस। सो मुझे ये वुमेंस डे वाली कंसेप्ट थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही। मतलब क्या है ना, वुमेंस डे हम स्ट्रगल करते हैं, हमारे लिए कुछ इंडिपेंडेंट होने का सोचते हैं, ओके ठीक है, मतलब हम करते हैं, ओके हमारे खुद के लिए। बट इसमें मेंस का भी बहुत सारा योगदान होता है, वो हमको सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं। सो मुझे सब वुमेंस से पूछना चाहती हूँ मैं कि आप सबको पता है कि मेंस डे कब रहता है? मतलब बहुत लोगों को पता भी होगा शायद, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ को नहीं पता होता है, ऐसा मुझे लगता है, मुझे भी नहीं पता है। ओके, सो हम ब्रदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ये ठीक बात है। बट देखो ना, आज हमारे लिए कितने सारे मेंस खड़े हैं, हमको सब हैप्पी वुमेंस डे बोल रहे हैं। सो फिर ये एक सपोर्ट की बात है। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो यहाँ जहाँ पे खड़ी हूँ, इसमें मेरे लाइफ के जो मेंस है उस सब का बहुत सारा योगदान है। मतलब ऐसा नहीं बोल रही मैं कि मेरी माँ ने कुछ किया नहीं है, उसने भी बहुत कुछ सहा है। बट मेरे पापा या फिर उसके लाइफ में जो मेंस है, वो अगर उसे सपोर्ट नहीं करते तो वो ये सब कुछ कर नहीं पाती। ओके, सो इट्स लाइक के मेंस ने वुमेंस का और वुमेंस ने मेंस का, दोनों ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे से अच्छे से बात करनी चाहिए। और अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हो तो करो, ओके, दैट्स ऑल। और वुमेंस ने अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो मेंस या फिर हमारे मम्मा पापा हमारे जो कर रहे हैं, वो हम खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए कर रहे हैं। सो बी समथिंग इन योर लाइफ, you feel good about that. Thank you. हाँ बिल्कुल अच्छा बोला आपने। ये मेंस के बारे में भी उनका ये कहना है कि योगदान जो है उनका भी बहुत बड़ा है, ऐसा उनका मानना है, और ये सही है। तो दोनों तरफ से बैलेंस बना हुआ है, इसलिए चीज़ें बेहतर हैं, तो ये भी ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हो, ये लो। हाँ आप लगाओगे क्या? बस सही का?
अच्छा ये देखो, इसको जेब में रख सकते हो चाहो तो, नहीं तो हाथ। नाही कशात ऑन आहे का? हाँ आप अपना नाम कॉलेज हाँ। वगैरह सब बता दो। हे एवरीवन इधर भी आ सकते, कहीं से भी करो चलेगा। नाही झालं. हाँ हो। Hey everyone, I am Vishnu, and let me clear one thing. I am not prepared any kind of speech or anything else. Honestly, I don't believe in Women's Day or celebration. Instead, I believe treating women every day right. That's what I learned from my mother, and I am always grateful for that. Thank you for for that. And 2 days ago, another thing, 2 days ago, I got some Xerox from whatever you call it from management. Now, and only 3 words written on that paper, Xerox, and that's need to improve. What need to improve in classes? Honestly, sir, there is no need to improve anything. honestly, there is no need to improve anything. And another thing, after 2 months ago, after met Vikas sir, I believe why teachers are called Guru. Thank you, Guruji. Thank you. और कोई है? ठीक है, आपने अपने मन की बात कही। उसका कहना ये भी था कि मैंने एक फॉर्म दिया था 2-3 दिन पहले, नीड टू इम्प्रूव नाम से, कि जनरली क्या होता है, रिव्यू दो क्लास का अगर मैं दे दूं सबको, तो सब यही लिखते हैं अच्छा पढ़ाते हैं विकास सर, ये है वो है। ये मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, तो मैं थक चुका हूँ। अब जब पहली बार पढ़ा रहा था तभी दे दिए थे, अब तो इतने साल हो गए, अब तो देना ही है, ये तो मैं श्योर रहता हूँ, मुझे इसके बारे में पता होता है। इसलिए हमने ऐड किया नीड टू इम्प्रूव, मतलब लिखना ही पड़ेगा कुछ तो। उसका मतलब ही ये वही है कि क्या इम्प्रूव करने जैसा था। हाँ, किसी ने लिखा टाइम को लेकर कुछ, किसी ने कहा मॉक को लेकर, तो अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जनरली मेन चीज़ है टीचिंग लगभग हर बच्चे को पसंद आई। इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती जीवन में। तो मैं अपने आप को सफल समझता हूँ इसलिए कि आप लोगों को मेरी टीचिंग पसंद है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो समझ आता है। कई साल लग जाते हैं टीचर को ये पता चलने में कि मुझे पढ़ाना ही नहीं आता, कई साल लग जाते हैं एक टीचर को ये समझने में। बाद में 20 साल बाद उसे पता चलता है अरे मुझे तो पढ़ाना ही नहीं आता था, आज पता चला। कोई ऐसा आता है वो ऐसी बेइज्जती करता है तब जाके पता चलता है किसी को, नहीं तो नहीं। तो इसलिए अगर आपको पसंद है पढ़ाना, आप अच्छा कर सकते हो तो करो। जो भी काम आप जिंदगी में कर रहे हो, अगर सच में आप बेहतर हो, आप खुद से अपने आप को बेहतर नहीं समझ सकते। मैं ये नहीं बोल सकता मैं बेहतर हूं, मैं ये नहीं बोल सकता मुझे सब आता है। ये लोग तय करते हैं कौन बेहतर है कौन नहीं है। मैं बेहतर हूं इसलिए आप लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा है, आप लोग मुझे सुनते हो, मुझसे सीखते हो, बस यही रीज़न है। अगर मैं बेहतर नहीं होता तो नहीं सीखता, कोई ना कोई मुझसे जुड़ता। मेन आपकी खूबी है, मतलब हर इंसान कहीं भी अगर किसी से कनेक्टेड है तो किसी ना किसी रीज़न से कनेक्टेड है। आप मुझसे कनेक्टेड हो इसलिए कि मैं शायद अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा आप मानते हो, इसलिए आप मुझसे जुड़े हो। तो वही चीज़ उसने बताई कि उसे अच्छी लगी चीज़ें जो भी हमने किया। कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं तो कुछ ना कुछ हमसे भी होने ही वाली, फिर भी स्टूडेंट्स नाराज़ नहीं होते। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई, मतलब बहुत साल की बात बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया कि कोई हमारे स्टाफ से कोई कमी है या और किसी चीज़ की कमी है तो भी ना सजेस्ट लास्ट में बच्चा कोडिंग सीखो कोई करता है कि यार थोड़ा सा टाइमिंग का है, लेकिन जाओ वहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। तो ये चीज़ मैंने देखी। नाराज़ भी कोई हो जाता है ना तो भी बाहर जाने के बाद बोलता है नहीं इंसान तो अच्छे हैं लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत कुछ भी वो तो हो सकता है, तो फिर भी यहीं रेफ़र करते हैं जनरली मैंने देखा। और मेरे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स रेफ़र करने से आते हैं। मतलब जब मैंने क्लास शुरू किया है और आज तक 7 साल हो गए, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करने की नौबत नहीं आई। वो जो पेड डिजिटल मार्केटिंग होती है मैंने आज तक नहीं की है। 7 साल हो गए। 1 महीने के लिए बीच में की थी थोड़ी सी, फिर मैंने ही बोला नहीं मत करो, पैसों की बात ही नहीं, उल्टा लोगों तक पहुंचूंगा तो लोग आएंगे, सबको पता चलेगा, ऐड दिखेगी। कभी कोडिंग सीखो की ऐड किसी को दिखी हो तो बताना। 1 महीना बीच में खाली एक बार किया था कुछ दिन के लिए, फिर मैंने बंद करवा दिया, हमारा स्टाफ चाहता था।
करना चाहिए ताकि लोगों तक पहुंचे, उन्हें हमारे बारे में पता चले, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन मेरे पास बिना डिजिटल मार्केटिंग के जो स्टूडेंट्स आए रेफरेंस से, इंस्टाग्राम पे लोगों ने पसंद किया है, यूट्यूब पे पसंद किया है, खाली आपके क्वालिटी से, आपने जो पढ़ाया है अच्छा उस वजह से। नहीं तो कोई किसी को फॉलो क्यों करे? मैंने इतनी रील देखी है, मेरा मन नहीं करता किसी को फॉलो करने का, मैं रील भी बहुत देखता हूँ, तो देखने के बाद मैं कभी किसी का अकाउंट ओपन करके मैं फॉलो ही नहीं करता। फिर भी आप सोचो ना कोडिंग का क्राउड कितना होगा। अगर मैं कॉमेडी के वीडियोस बनाता, डांस के बनाता, तो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन मतलब अच्छा नंबर है। अगर हमारे 7 लाख के आसपास अगर फॉलोअर्स हैं, सारे कोडिंग वाले हैं, जिसमें से 4-5 लाख लोगों ने अनफॉलो किया है, वो इसलिए उनकी एग्जाम हो गई, अब उनके काम का नहीं, कोडिंग सीखो, तो वो मुझे छोड़ के चले गए। ठीक है, क्योंकि वीडियोस रोज आते हैं, कुछ दिन अगर आप इग्नोर करोगे ना तो नहीं दिखाई देते सजेशन में, अनफॉलो करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये नहीं पता होता स्टूडेंट्स को। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो आप सोचो 7 लाख अगर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो कितना बड़ा नंबर होगा वो। 7 लाख बहुत बड़ा नंबर है। वो सिर्फ कंप्यूटर के हैं। अगर आप जिस एरिया में रहते हो, आपका जो घर है, पता करो आजू बाजू में कितने लोग कोडिंग सीख रहे हैं, पता करो, कोई नहीं मिलता जल्दी। हाँ, पुणे की बात अलग है, यहाँ पे क्यों मिलते हैं, क्योंकि सब कंप्यूटर के ही कॉलेज है और यही है। तो उस हिसाब से तो सफलता जो मिली है इंस्टाग्राम पे और इन सब चीज़ों पे मिली है थोड़ी बहुत, मैं मानता हूँ। वो भी तुक्के से, कोई मेरी बहुत खास मेहनत नहीं थी। बहुत मेहनत अब नहीं करता जितनी मैं पहले करता था, तो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। और अभी तक सब कुछ ठीक है, चल रहा है, सब कुछ ठीक है। हाँ, और कुछ बोलना है किसी को? बस फिर शुरू करें। हाँ, वो ले लो, लेके आ जाओ केक वगैरह, क्या है वहां से। पार्थ फोन भी ले लो मेरा जो चार्जिंग में लगा है। क्या फोन? केक नहीं, उन्होंने चार्जिंग पे लगाया फोन। ले लो, हो गया होगा चार्ज। अच्छा, ये यहीं पे है, इसको कहाँ, इधर रखना है टेबल पे, तो ये बंद कर दूं क्या? इसको ऐसे घुमा सकते हैं, क्या करूं, जैसा आप बोलो। उस पे हाँ, लाइव आ जाओ ना, पीछे जाके किसी को दे दो फोन। हाँ, कोणाला तरी फोन, हो कोणाला तरी फोन देशील। हो, रखो इधर। तो ये हाँ, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना? हाँ, दिखेगा यहाँ से। डायरेक्ट भी ऐसे कर दो ना। ठीक है, केक तो अच्छा है बहुत। इसको निकाल लेंगे ना, ये निकाल लो, 1 मिनट रुको। हाँ, उसको निकाल लो, आ जाओ। वैसे वुमेंस डे है तो केक भी आपका ही है। हाँ, बुला लो, जो वुमेंस हैं वो लोग ही कट करेंगी। हाँ, आप लोग आओ ना उनके साथ। ये वाला भी ले लो, इसका भी एक बार केक। हाँ, कहाँ है? आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, वो लोग भी आएंगे आपके साथ। हाँ, आ जाओ आप लोग, गर्ल्स जो भी हैं। हाँ, आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, सब लोग, आप लोग भी आओ, चलो आगे आ जाओ इधर, यहाँ पे सब लोग। हाँ, आ जाओ। हाँ, दिया ना मैंने।
पहले वही किए। हाँ चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ चलो। हाँ आ जाओ, आप लोग भी बैठी क्यों हो, आप लोग तो मेन हो, आप ही लोगों ने इतना सब कुछ किया है, तो आ जाओ। क्लास का कौन सा? हाँ बाकी के उधर से। ये एक मिनट, किसने किसने ये सब किया है वो? अच्छा, तो पहले तो थैंक यू मैम को भी, और नेत्रा और प्रणोति शाह, इन्होंने जो अरेंजमेंट की है इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ठीक है, बाकी आप लोग शुरू करो। ऐसे सीधा ही रखो फ़ोन। हाँ, फिर वो बच्चों को देखने में। हाँ करो, कट करो। ठीक है, आप भी आ जाओ, रोहित सर ने भी, आपका भी योगदान है। नहीं ठीक है। अरे ठीक है, केक भी सबको दे दो। अच्छा वो गिफ्ट दे दो ना सबको, अभी दे दो। हाँ हाँ दे दो, हो जाएगा। हाँ सिंगल सिंगल सबको एक एक करके। हाँ चालू है, चालू है पीछे। ये लोग निकाल रहे हैं ना फोटो, वो लोग। लास्ट में ले लेंगे। गिफ्ट एक एक को देते हैं, बाद में सबको एक साथ। ठीक है, दे दे। ठीक है, एक एक को दे देते हैं। कोणाला सांगून देना। ठीक है, दूँ क्या? हाँ आ जाओ, आपसे ही शुरू करते हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, उसके लिए थैंक यू आप लोगों को। हैप्पी वुमेंस डे आप सभी को। ठीक है, ठीक है, आप आ जाओ। इसमें क्या है वैसे बता देता हूँ, नहीं तो सब लोग चाहते हो कि इसमें क्या है। तो इसमें कैडबरी का बॉक्स है, और उसके साथ साथ एक शायद कप है, एक बार देख लेते हैं। हाँ एक मिनट, ये जो कप है जिस पे एक कोडिंग सीखो का एक लोगो है, हैप्पी वुमेंस डे, और कुछ प्रिंट एफ स्ट्रॉन्ग,
प्रिंट कॉन्फिडेंट सी आउट रोल मॉडल ऐसे लिखा हुआ है। तो ये कप है, दो। ये लो, हैप्पी वुमेंस डे आपको भी। हाँ, और हाँ आप आ जाओ। ये लो, हैप्पी वुमेंस डे। ठीक है, हाँ आ जाओ आप भी। हैप्पी वुमेंस डे। ठीक है, और कौन है? हाँ आ जाओ। हैप्पी वुमेंस डे। ठीक है, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। ये लो, हैप्पी वुमेंस डे। हाँ वेलकम। हैप्पी वुमेंस डे। हाँ, हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। हाँ आ जाओ। हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। और पीछे हाँ आ जाओ, इधर हाँ आप बाकी हो ना शायद, आ जाओ आ जाओ। हैप्पी वुमेंस डे। हाँ आ जाओ पीछे। हाँ आ जाओ आ जाओ। हैप्पी वुमेंस डे। कमेंट आई है यूट्यूब अपने इस पे, ऑनलाइन बैच के गर्ल्स को भी कुरियर कर दो सर। ठीक है करेंगे। हैप्पी वुमेंस डे। हाँ हैप्पी वुमेंस डे। ठीक है, हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। ठीक है, हाँ और कौन है? हो गया है सबको? मैम को भी हाँ। हैप्पी वुमेंस डे। हो गया। किसी को अगर चाहिए रहेगा तो अपनी बहन के लिए किसी को तो वो लेके जा सकता है। जैसे लड़कों में चाहता है वो घर ले जाना, घर पे उनकी बहन है तो वो ले जा सकता है। आपको चाहिए? ठीक है, हाँ ये केक दे दो सबको। चलो, तो अच्छा लगा आप सभी लोगों ने जो सहभाग किया उसके लिए थैंक यू। ठीक है चलो फिर। हाँ ये केक खाली दे दो। क्या फोटो लेना है क्या?
अच्छा बोल दो इनको, बोलो बोल रहे हैं कि साथ जिनको जिसको भी सबके साथ एक फोटो निकाल बोल दो। हाँ ठीक है, सारे गर्ल्स एक बार आ जाओ ना स्टेज पे, अपन एक फोटो क्लिक करते हैं। ओके फोटो निकाल हो गया है। अब वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया तो अभी मैं 2 बार किया मैंने, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो गया। अभी बंद हुआ, अभी बंद हुआ। आपने शेयर नहीं किया है क्या? आ जाओ सब जन आ जाओ, चलो अर्ची में से शेयर हो जाए। आगे खड़ा रहूँगा। आ जाओ सब स्टेज पे आ जाओ। खुर्ची उभं आहे, सर्व उभं राहतील असं. बहुत सारे लोग तो आए भी नहीं। जो गर्ल्स बची होंगी अगर कल आएंगी तो उनको दे देना, कोई रहेगा तो। हाँ जो गर्ल्स नहीं आई है उनको कल दे देना अगर आएंगी तो।